नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब और खम्मा गणी दोस्तों। सुनाओ अपनी कहानी, बनाओ अपनी पहचान की इस मुहिम में फिर लौटे हैं आपके पास एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। जी हाँ, ये कहानी है डॉक्टर शोना शर्मा की जिंदगी के बारे में। दोस्तों, आपको बता दें, डॉक्टर शोना शर्मा की कहानी एक इंजीनियर से सामाजिक कार्यकर्ता बनने की कहानी है, जो हर किसी के लिए प्रेरणादायक है। आपको बता दें, इनका जन्म दिल्ली में हुआ, लेकिन पालन पोषण झीलों की नगरी उदयपुर शहर में हुआ। इन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा उदयपुर शहर से ही पूरी की। इनके पिता एक आर्मी मैन थे और माँ एक गृहिणी से सामाजिक कार्यकर्ता बनी। माँ द्वारा किए गए समाज सेवा के कार्यों को देख इन्होंने भी समाज कल्याण में अपना योगदान देने की इच्छा जाहिर की और इस ओर अपनी दिलचस्पी दिखानी शुरू की। अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई के साथ साथ इन्होंने फाउंडेशन के साथ स्वेच्छा से काम करना शुरू कर दिया और फिर ये सफ़र यूं ही आगे बढ़ता रहा। आज ये उदयपुर में कोशिश एक आशा नामक एनजीओ की को फाउंडर एंड डायरेक्टर है। जी हाँ दोस्तों, ये अपने एनजीओ के माध्यम से समाज की वंचित महिलाओं एवं बच्चों के विकास के लिए, उन्हें बेहतर जिंदगी देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। हर जरूरतमंद की मदद करना और समाज कल्याण के लिए कार्य करना ही इनके जीवन का मकसद है और अपने इसी मकसद के साथ ये हर दिन आगे बढ़ रही है। दोस्तों, आपको बता दें, इनका फाउंडेशन महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए पूरे साल भर में कई कार्यक्रम भी आयोजित करता है, ताकि महिलाएं अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरूक रहे। जैसा कि हमने आपको बताया कि समाज सेवा के कार्य करने की प्रेरणा इन्हें अपनी माँ से मिली, वही इनकी रोल मॉडल है। उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए आज ये भी समाज कल्याण के कार्य कर रही है और समाज हित में अपना अहम योगदान दे रही है। दोस्तों, डॉक्टर शोना शर्मा के इस सफर से जुड़े ऐसे ही कई और रोचक किस्सों एवं अनुभवों के बारे में जानने के लिए अब सीधा चलते हैं इनके पास, मिलते हैं इनसे और सुनते हैं पूरी कहानी इनकी अपनी जुबानी। Hi, this is Shona Sharma, daughter of Mr. P.P. Sharma and Mrs. Asha Sharma. Well, I am an engineer turned into social worker, and currently I am just doing the social work, including myself into Koshish Kasha Foundation. We have incepted like 20 years back, and since then we are just working for women underprivileged kids. And yeah, basically we want to encourage the youth to inculcate themselves into the society. And I'm coming from a background where it is mix up of social work and defense family. So my father was an army officer, and my mom, she was a housemaker but turned into social worker as well, who inspired me to do this. So my brother, he's an engineer, and I'm an engineer too. So this is all it. I want to tell that people, whoever wants to create a difference in someone's life, this is the best platform you can do. Introduce yourself to the society and doing something selflessly. I mean, it will give you the most happiest thing in ever you can receive as a gift from God. So you have to, if somebody wants to create a difference in someone's life, so you have to uh, try to initiate yourself to know the society by knowing the people around you. uh, make a change, create a change, know yourself, educate others. I mean, education is much more important, not only for literacy, but yeah, for awareness purposes also. So yeah, this is it for Koshish. I want other people to join us and to know more about the people. So I want others and everyone out there who wants to create a difference in someone's life by spreading happiness, and yeah, just join the drive anywhere nearby you. And yes, we are here to hear you out. So please kindly join Koshish Ekasha Foundation, not only just being a donation part or being a person who cannot just come over and just,
towards something that you have, but yeah, just involve yourself to the society and you will feel the happiness you'll get that from God. So here is the story of Koshish, which is like basically I have started my career from 12 years back, I would say. But yeah, Koshish is something we have initiated 20 years back. Being a part of Koshish, I would always try to know people, know their, to help them out by whatever I can do for them. And the main inspiration was my mother. Yes, she once told me when I was like very much into कि मुझे एक नया जूता चाहिए, मेरे पास नए जूते नहीं है, प्लीज मुझे शूज दिलाओ. Then my mom told me that see the other people who do not have their legs. I mean, they don't have their feet to put on shoes. So it touched me a lot. And yeah, after engineering, while engineering, I supported Koshish as being an volunteer, and I was just going towards to forward for the people, and I was knowing them with my mother. Yeah, we have started lots of stitching centers we were having around Udaipur. So there जैसे कि कोई विधवा है या किसी के हस्बैंड ने उसे छोड़ दिया है या एजुकेशन बहुत ज़्यादा नहीं होने की वजह से औरतें कुछ ज़्यादा नहीं कर पाती हैं, तो my mom used to go there and teach them stitching with like investing a little bit of amount into the stitching centers and to their life, and tell them you have this power to start your new life by your own. So this is a good chance to do that. So my mom used to go there by walking. Like I still remember एक दिन ऐसा था, मैं बहुत छोटी थी. I was like in 6th, 7th class. I don't remember. So we used to see TVs a lot when we come down to house after school. So that time, this day I came up and TV नहीं था. I was like कि TV क्यों नहीं है? फिर मुझे पता चला, मम्मी ने कहा वो तो मैं दे आई. तो we were like, हम छोटे थे, of course बहुत रोने लगे. पापा शाम में दूसरा टीवी ले आए. पर फिर बाद में पता चला कि मम्मी ने वो टीवी जो पास से कच्ची बस्ती हुआ करती थी वहां दे दी, साथ में सारे केबल कनेक्शन एंड एवरीथिंग, so that these people can see it. उनके पूरे एरिया में एक ही टीवी हुआ करता था, वो वही टीवी था. एंड आई वाज लाइक, तब तो बहुत बुरा लगा था क्योंकि वो छोटी थी, बच्ची थी. पर अब मुझे समझ में आता है कि ये करना तब क्यों जरूरी था, अपने बच्चों को दुखी करके दूसरों को सुखी दे करके, क्योंकि इन रिटर्न लाइफ उनके जो ब्लेसिंग्स मिले हैं ना, उनसे आज उनके बच्चे बहुत खुश. सो दिस इज हाउ आई हैव स्टार्टेड. और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आफ्टर इंजीनियरिंग व्हाई डिड यू लाइक वेंट टू दिस social work thing, why didn't you go to your field? So I have worked for my field as well. And here being in Koshish, I will never regret for being an engineer, because यहाँ पे भी टेक्निकल इश्यूज, टेक्निकल काम इतने सारे होते हैं जिसके लिए आप अपने आप को जोड़ पाते हैं. और ऑफकोर्स कि आपने कुछ सीखा है सॉफ्टवेयर के अंदर, तो आप बहुत सारी चीज़ों को जान पाते हैं और लोगों से बहुत जल्दी कनेक्ट कर पाते हैं, क्योंकि आप एक हिस्सा है उन सब चीज़ों का. तो मुझे लगता है कि कोई भी किसी भी फील्ड से हो, डजंट इवन मैटर. व्हाट मैटर इज व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ एंड वेयर यू आर स्टैंडिंग राइट नाउ. So this is like the most drastic change in my life. And after that pause, I started working for people. I started working as a soft skills trainer. So right now I am doing this soft skills training as well for women who are coming up here and working with us. तो सी देखिए, ऐसा है कि हर चीज़ में मुश्किलें आती हैं, हमारी भी आई हैं, आती रहती हैं हमेशा. तो जैसे बहुत पहले की एक बात बताऊंगी, हमने बहुत शुरुआत ही करी थी और मैं मम्मी के साथ जैसे जाती थी पहले, लोगों की मदद की हमने करी थी. आपको मदद की ज़रूरत तो नहीं है, तो लोगों को सबसे ज़्यादा ये लगता था कि ये मदद क्यों कर रहे हैं, इन्हें क्या फ़ायदा होने वाला है. मतलब ज़रूरी नहीं है तब ये सोचे, पर कुछ सोच आज भी वैसी ही है. और मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों को समझने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी था उन लोगों के दिमाग को समझना, है ना. तो जब मैं एक बार गई थी और बहुत जल्दी चली गई थी एक गांव में देखने के लिए कि कोई ऐसा यूथ है जिसको कोई काम की ज़रूरत है, या कोई लेडी है जिसको काम की ज़रूरत है. तो वहाँ पर मैंने एक घर में नॉक किया और उन्होंने बाहर से मुझे कहा कि रोटी अभी बनी नहीं है, बाद में आना. I literally felt कि oh my God,
इन्होंने ऐसा क्यों बोला होगा। बहुत बार ख्याल आया कि एक बार वापस अंदर जाऊं और बोलूं कि नहीं, मैं इस काम के लिए नहीं आई, मैं आपको समझने की कोशिश की। पर उस दिन पता नहीं इतने सारा पेशेंस मेरे अंदर कहाँ से आ गया, और मैं बैठी रही वहां पर उनके घर के बाहर। तो कहीं 1 घंटा हुआ, फिर 1.5 घंटा हुआ, फिर आसपास के लोग भी आकर के देखने लगे। उन्होंने दरवाजा खोला और उन्होंने मुझे देखा, तो मेरी आंखों से एक आंसू निकल गया। मैंने उस औरत को देखा, उसके हाथ में एक रोटी थी और वो लेकर बाहर आई थी। वो इसलिए नहीं लाई थी कि मैडम आपको भूख लगी है या आप खा लो, वो इसलिए लाई थी, उसे लगा कि पता नहीं कौन आया है इतनी सुबह सुबह, क्योंकि मदद करने की कोई इतनी जल्दी नहीं। तो मुझे बस ये कहना है कि आवाज ऊपर वाले की होती है, क्या पता कब किस रूप में वो आवाज दे। तो अपने जो फाउंडेशन है, जो दायरे हैं, उन्हें आप खोलिए, क्योंकि वो दरवाजा जब खुला, उसे मैंने कुछ सिखाया, उससे मैंने कुछ सीखा। तो ये चैलेंजेस हमेशा जिंदगी में आते हैं। अभी भी जैसे किसी की मदद के लिए मैं जाती हूँ, तो उनके घर के परिवार के लोग पहले आके खड़े होकर कहते हैं कितने पैसे मिलेंगे और कहाँ काम करना है, क्यों रोज आना पड़ेगा क्या। क्योंकि देखिए, मुझे खुद को नहीं पता होता मैं जब ऑफिस आती हूँ तो मैं कितने घंटे यहाँ बैठ के काम करूंगी, या आपको नहीं बता सकती कि मेरे पास आज ये ऑर्डर आएगा या आज यहाँ से काम आएगा तो हमें ये काम करना होगा। पर हाँ, मिलजुल करके आज हम सब काम कर ही लेते हैं। कुछ ना कुछ गलती हो जाती है किसी से, तो हम सीख लेते हैं उनसे, फिर आगे कोशिश करते हैं कि नहीं है गलती। तो कोशिश करते रहना चाहिए, क्योंकि कोशिश ही एक आशा है। So the biggest change in life is like you yourself who can change your life, make others' life better. So I would say, now there's a saying, if it says yes, it will give you what you want. If it says no, it will give you something better. And if it says wait, it will give you the best at your own time. Because God is always watching you from everywhere. So going for the initiative, I would take you a little bit of time in giving this concern about AIDS Day, which is coming on this 1st of December. So we as a Koshish team, we have initiated every year. We used to do a lot of, efforts to tell people and tell everyone that cancer is something which can happen to anybody, anywhere. So anyone can be affected by cancer. In fact, the majority of people, they do not even diagnose themselves by having a cancer. So we are here to give the awareness of cancer. So we have scheduled awareness camp in Udaipur and Delhi as well. So people can come down and learn more about cancer. So also many of the chemo wards, they do not have a lot of taking donations for clothing and something. So we are here to give them scarves and we are giving them caps. And yeah, I would say please educate others. Please reach out to your local areas, hospitals where you can see this cancer patients. So nowadays, the most effective cancer in women are breast cancer. So know your body well. Go and talk to people who are actually affected by cancer, or whom you can help by your, by sharing. You can be a head of being a, being an affectionated people. And so go search such people, manage, give them some monogram for who is like at risk of having cancer, and how they can check their breast for not having cancer or the symptoms or whatever. So this is what we are doing. So this cancer day, just spread and spread happiness and lots of love here. So when I look into some role models, so I have my role model here in my house, always with me, in the name of my mother. Everybody has, and mine is kind of little special because she is mine and I am hers. And of course, I connect myself to my mother more because she is not only the one who has made me as a person, as a human being, but yeah, she has always selflessly given her love to the society as well. She has been, inspired me a lot. Once I was sitting down and I was like very much into mess because I was into a situation where I can annoy to the people because something bad has happened to me without even knowing my knowledge. So my mom came down to me and she just, told me about a small little story. I would really like to share it with you. तो she said कि 100 साल पुरानी कहानी है,
100 साल पुरानी बात, एक आदमी था जो हर रोज सुबह उठ करके न्यूज़पेपर पढ़ता था जैसे हम सब करते हैं। तो इस दिन सुबह वो उठा और उसने जब न्यूज़पेपर खोला तो इसमें ऑब्ituary कॉलम, मतलब जो शोक संदेश जिसमें आते हैं, इसमें अपना खुद का फोटो देखा और उस फोटो पे लिखा हुआ था द डायनामाइट किंग इज नो मोर, है ना। और उसमें लिखा था द मर्चेंट ऑफ डेथ डाइज, मतलब कि मौत का सौदागर अब नहीं रहा। तो शोना मुझे ये बताओ कि तुम उसकी जगह पे होती तो तुम क्या करती? मतलब क्या, मैं तो बहुत अग्रेसिव, मतलब तो जाकर के ऑब्वियसली पेपर हाउस में जाकर के बोलती किसने किया है, ये क्या जरूरत थी, और ये मैं तो नहीं हूँ, मैं तो जिंदा हूँ, और मेरे बारे में किसने फोटो डाला है और ये सब किया है। आई वुड बी वेरी अनोइंग, लाइक रेस्ट ऑफ द पीपल हु आर वाचिंग इट, दे मस्ट बी, दे कैन सी मी। तो मैं न्यूज़पेपर के ऑफिस में जाती, अपने रिलेटिव्स को फोन करती कि नहीं नहीं मैं जिंदा हूँ, पेपर मत पढ़ लेना। तो लॉट ऑफ थिंग हैपन, आई टोल्ड हर। तो शी सेड कि अब बताओ उस आदमी ने क्या किया होगा, क्या किया होगा, वो भी ऐसे ही चिल्लाया होगा ना। और मैं लाइक नो, ही जस्ट सेट डाउन, ही केप्ट ऑन थिंकिंग कि मेरे मरने के बाद लोग मुझे ऐसे याद करने वाले हैं। तो आई वाज लाइक वेरी शॉक्ड कि बाबा ऐसे कैसे हो गया। तो सडनली माय मॉम सेड, शी आस्क्ड मी कि ही इज दैट पर्सन। मैंने कहा कि पता नहीं डायनामाइट किंग, आई डोंट नो, मेरी it's Alfred Nobel. He said yes, he was the person that he started working for peace. तो आज जो नोबेल पुरस्कार मिलते हैं उन्हीं के नाम पे मिलते हैं। उस वक्त मुझे समझ में आया कि पेशेंस की कितनी वैल्यू है। और ये जो इंसान मेरे सामने बैठी है जिसने मुझे ये कहानी सुना के आज मेरे गुस्से को शांत कर दिया है, शायद आने वाले समय में मैं लोगों की गुस्से को इसी तरह कोई और कहानी या अपनी कहानी देकर सुना के शांत कर दूँ। उससे बड़ी इंस्पिरेशन कोई हो नहीं सकती। तो मेरे लिए आज वो इंस्पिरेशन है, तो शायद आने वाले लोगों के लिए मैं इंस्पिरेशन बनी। तो मैं चाहती हूँ कि आप भी यही याद करें कि आपके जाने के बाद लोग आपको कैसे याद करने वाले हैं, उसके बारे में आप आज सोचेंगे तो आपका कर्म है। सो एजुकेशन इज एक्चुअली बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि देखिए एक बहुत अच्छी बात है कि एक आदमी जब एजुकेटेड होता है तो वो दूसरे आदमी को एजुकेट करता है, पर एक औरत जब एजुकेटेड होती है तो पूरी फैमिली को एजुकेट करती है। तो खाली औरतों के लिए नहीं, मर्दों के लिए नहीं, हर इंसान के लिए एजुकेशन जरूरी है। एक एजुकेशन इज नॉट बेस्ड इन लिटरेसी, आप समझ पा रहे होंगे मैं ये कहना चाहती हूँ कि सीखना जरूरी है, पढ़ना जरूरी है अभी, क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें जो आगे आके बाधाएं पड़ जाती है आपके एजुकेशन की वजह से, तो वहां पर आपको काम आती है आपकी खुद की पढ़ाई, आपकी खुद की मेहनत, आपकी खुद की सोच। बट हाँ, जहाँ एजुकेशन की बात है तो मैं एजुकेशन को किसी तरह से भी लिटरेसी के साथ बहुत ज्यादा मैच नहीं करना चाहती, क्योंकि मेरे लिए क्या है ना जरूरी कि इंसान को पता होना चाहिए वो क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। इसके लिए जरूरी है कि आप किताबें खोले और रटना चालू कर दे और आप बोले कि नहीं नहीं आज तो यहाँ न्यूटन का थर्ड लॉ ही लगेगा और मैं सामने वाले को जवाब देके ही मानूंगा, क्योंकि एवरी एक्शन हैज अ इक्वल रिएक्शन। उससे बेटर है आप बैठे और सोचे कि इसने जो किया ये अभी के लिए जरूरी है क्या मेरा करना। तो एजुकेशन भी उतना जरूरी है जितना एक्सपीरियंस जरूरी है, क्योंकि एजुकेशन के साथ साथ हम अपने साथ जुड़े हुए लोगों को या अपने जुड़े हुए काम को आगे बढ़ाते बढ़ाते जाते हैं, जिसे हम एक एक्सपीरियंस की तरह काउंट कर सकते हैं। So I would say both are like equally balanced and two side of a coin. I mean education and then there is experience. So both are very much important in life, and one should learn from their mistakes, one should learn from their experiences, what they have lost and they should not do in future. So this is what I would say, both are very much important. So just need to educate and get the experience as much as. So yeah, the story begins when I was a kid. I am basically from born in Delhi, brought up in Udaipur, of course. I did my education from Udaipur, Rajasthan. And yeah, I have been into Pan India for my work purposes. But a lot of things which actually connect me to my home, because I'm very homesick. I mean, sometimes I realize this. जैसे कि 5 क्वालिटी अगर अपनी बताई जाए तो उसमें मेरी एक क्वालिटी तो होगी, घर पे रहना है मुझे। अब मुझे घर में रह के कुछ करना होता है या नहीं करना होता, आई डोंट नो, पर मुझे घर पे ही रहना होता है, क्योंकि where is your family begins
you always feel yourself safe, not being at home but with your family. मेरे को मेरे बचपन के बहुत सारे ऐसे किस्से हैं जो याद रहते हैं, पर हाँ कुछ ऐसे हैं जैसे कि मेरे पापा जैसे कि आर्मी से हैं, तो पापा क्या करते थे, 5 बजे ऐसे ऑफिस से छूट के जैसे आते थे, हम लोग बाहर भागते जाते थे और पापा को कहते थे या तो हमें एक चक्कर लगवाओ या तो आप एक काम करिए हमें कुछ खिलौने दिलवाओ। तो पापा ऑलवेज यूज टू गेट मी दिस एरोप्लेन। आई डोंट अंडरस्टैंड, मेरी सिस्टर है उसको हमेशा एक कार मिलती थी, लग्जरियस कार, और मुझे मिलता था एरोप्लेन। में खुश तो होती थी, पर वो एरोप्लेन क्या पहले जो आता था वो उड़ नहीं पाता था, तो स्टाइल ही होता था रास्ते पे। तो माय डैड यूज्ड टू से तुम्हें पायलट बनना है। मैंने कहा ओ आई हैव टू बी लाइक दैट, अच्छा अच्छा। तो जब मैं व्हेन आई ग्रू अप और जब मेरा मौका आया कि अब मैं कॉलेज करूँ, तो मैंने कॉलेज से पहले 11th-12th के टाइम पे आई केम डाउन टू माय डैड एंड आई आस्क्ड कि पापा आई वांट टू बिकम अ टीचर। माय डैड वाज लाइक टीचर, noble job, leave it for noble people, huh? I was like, acha. So he said, but at that time we were not having that much of option, to make our careers. So yeah, either we can go for doctor, and now we have a lot of options. You can just remove your towel and do a lot of things with that. So now, so I didn't, argue with this army man, and I just took my science, maths, and become an engineer. And then I started as a teacher, teaching job, become a trainer. So this is how things changed. And yeah, in Udaipur I have seen, मतलब बहुत सारी चीजें बदलती हुई देखी हैं, जो रास्तों में कभी कोई जाता नहीं था, बहुत अंधेरा होता था। आज वहाँ इतनी लंबी सड़कें बन गई हैं कि आपको आपकी मंजिल तक तो सीधे लेके चली जाएगी। So I love Udaipur because people are very simple and they are more connected. You will get to know what is cooking in their next neighborhood, which is like very good in India, I would say. And I really love the smell of the town, and I really love the lakes of Udaipur. But yeah, more of if someone is getting chance to get out of your cocoon and make a good, great beginning, so one should always go. I would always appreciate such kind of gesture. What is like meant for our nation, meant for one's self-respect, one's career. So I would always say कि बाहर निकलिए और बाहर की दुनिया देखिए, बहुत कुछ है। Then only आप अपने आप को समझो। So I wish की dreams, yeah. Let's talk about dream या career. मैं शुरू से जैसे सबके होते हैं, आपके भी सपने, मतलब there is like no one goal है ना। शुरुआत में जब मैं 6th में थी तो मुझे लगता था कि मुझे मिस इंडिया बनना है। फिर जब मैं 10th में आई तो मुझे लगा कि अब तो मुझे पायलट ही बनना है, पापा ने तो खूब सारे प्लेन्स दिए ना। So your goal changes with life, with time. So what is more important? It doesn't matter where are you coming from. What matters is who you are today. And when it's coming about my future, I believe in me. I completely believe in myself. Or yeah, I haven't thought of changing my career as something from something else. क्योंकि मुझे खुद को भी नहीं पता कब ये चेंज हो गया और आपको भी नहीं पता चलेगा। तो कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आज आपका बच्चा ये सोचता है कि पापा मुझे तो आज डॉक्टर बनना है, और फिर कल वो एकदम से आके बोलेगा नहीं मुझे तो IAS ऑफिसर बनना है। इट डजंट मैटर, उसे जैसा जो सपना देखना है उसे देखने दीजिए, जिसकी जो इच्छा है वो करने दीजिए। क्योंकि मैंने भी अपने आप के अंदर कोई लिमिटेशन या कोई बाउंड्रीज नहीं रखी है। आई एम लाइक अ फ्लो ऑफ रिवर विच फ्लोज। तो बहता पानी हूँ मैं, तो आप भी बहते पानी की तरह बहिए। मतलब इट्स जस्ट गो विद द फ्लो, व्हाटएवर टेक्स यू, व्हाटएवर गिव्स यू, जस्ट एक्सेप्ट इट एंड ट्राई टू इन्वॉल्व योरसेल्फ टू व्हाट एक्चुअली यू वांट इन लाइफ। आगे जिंदगी में क्या करना चाहते हैं उसे सोच के आज चीज की। ऐसा नहीं कि आज सोच रहे हैं और बस हम आज थम गए हैं, पर ऐसा नहीं है, कल का दिन भी आएगा और कल भी बहुत कुछ करना है आपको। उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप आज का आज बहुत अच्छा करें। तो मैंने अपने करियर को इसी तरह चूज किया है, मतलब फिर पढ़ते पहुंच ही गए यहाँ तक, तो आप भी कहीं ना कहीं पहुंच ही जाएंगे। So here is a song that pushed me whenever I'm down. I feel sad, I feel blue. So this is the song I always
sing for myself. I can almost see between my hands. There's a voice inside my head says, you never leave me. It's like something the moves I make, lost with no direction. My heart is shaking, but I gotta keep trying. Gotta keep my head held high. There's always another mountain. I always wanna make it move. There's always an uphill battle. Sometime I want to lose. But I saw how fast I get there. And God was waiting on the other side. It's the climb. It's the climb. I think Miley Cyrus मुझे इसके बाद मार देगी because I sang so bad. But yeah, this is a song. You can climb yourself high when you want it. So just keep on going. कोशिश करते रहिए. कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती. Aware yourself for, of course, with COVID-19, new virus is coming. So stay home, stay safe. And yeah, try to like, share, comment in our page. Go to Koshishikasha website and you can start donating your clothes, your shoes, your stationery to us. We have our office address here, so you can connect to us. And all over, if you want to share one day meal to underprivileged, you can contact us as well. And yeah, for coming December, I would say, please spread awareness. Please share this as much as you can, and use the hashtag Koshishikasha Foundation. And yeah, we are here to help you and hear you and hear you. So, thank you so much for being here, for having me here with our guest. And love and happiness to all of rest in the world. दोस्तों, एक इंजीनियर से एक सोशल वर्कर बनी डॉक्टर शोना शर्मा की कहानी को आप सभी ने सुना। ऐसी ही प्रेरक कहानियाँ रोजाना सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। और अगर आज की ये कहानी आपको पसंद आई है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अब आप भी बन जाइए भारत की प्रोफेशनल कम्युनिटी की आवाज़ और सुनाओ अपनी कहानी, बनाओ अपनी पहचान की इस मुहिम से जुड़कर अपने जीवन के अनुभवों, करियर यात्रा, अपने उत्पादों एवं सेवाओं के पीछे की वास्तविक कहानी से देशवासियों को प्रेरित करें और अपनी एक नई पहचान बनाएं। Tell your story, inspire and build your brand with the power of video. जय हिंद, जय भारत।